1998 was the year when I came here and took my examination of RJS. Though I really couldn't make it, but I still have certain fond memories associated with this beautiful building. And to be back again today is getting nostalgic a little. So, first of all, my friend and a well-wisher and my brotherly figure, Sipani Sahab, Namaskar, Principal Ma'am, and my dear family. Well, I've been teaching English in this neck of the woods for the last more than 28 years now. And teaching gives me immense pleasure. And whenever I get an opportunity to interact with my own fraternity, that is teaching fraternity, it gives me immense joy and pleasure. I would like to take the same pleasure here. मोबाइल नहीं बजने चाहिए भी किसी के, है ना? अगर बज रहे हैं तो वाइब्रेशन पर करें. और ये 60 मिनट जब तक मैं बैठा हूं, नो डिस्टर्बेंस प्लीज, है ना? थैंक यू. To be able to talk to teachers and share my experiences with them is something that makes me tremendously happy. आपके साथ मेरा संवाद अंग्रेजी में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, आप चाहें तो आपके साथ मेरा संवाद मारवाड़ी में भी हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे संवाद के बीच में किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं चाहिए, इसलिए भाषा कतई कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए. राइट फ्रेंड्स? ओके. I think all of you have been teaching for a pretty long period of time. मैक्सिमम किसका कितना अनुभव है? 25 साल से ऊपर जिनका अनुभव है वो हाथ खड़ा करें. जिनको 25 साल से ज्यादा अनुभव है, सर 2 लोग, बाकी 20 से ज्यादा, 15 साल से ज्यादा अनुभव वाले लोग, गुड, राइट. बाकी 8-10 साल का अनुभव. आई थिंक मुझे ये 29वां साल है पढ़ाते हुए. और जब मैं यहां बैठा था तो मैं मनोज जी से कह रहा था, पंकज मेरा स्टूडेंट रहा है. और एक बार जब मैं टीचिंग को वर्चुअली बंद करके जुडिशियली कहीं पर एक्टिवेट होना चाहता था, तो ये कोचरों के चौक वाले लोग थे जिन्होंने मुझे वापस एक टीचर के रूप में एस्टेब्लिश किया. इसलिए कोचरों का चौक एक टीचर के नाते मेरा रीबर्थ करवाने वाला प्लेस है. Those beautiful fond memories, you know. इतना लंबा समय, और ऐसा क्या मोटिवेशनल फैक्टर है जो मेरे से दिन में 12 घंटों तक लगातार काम करवा सकता है? सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक. बच्चा तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी टायरलेसली मेरे से काम करवाने वाली सबसे मजबूत विधा कौन सी हो सकती है? आप जानते हैं वो क्या है? I was reading somewhere when a student said to his teacher, "You smell like my mother." Do you understand? What did that student say to his teacher? You smell like my mother. जब प्रिंसिपल महोदया ने किसी बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड देखा और उस प्रोग्रेस कार्ड में बच्चे के डिटीरियोरेशन की जानकारी मिली, प्रिंसिपल महोदय या महोदया ने उस शिक्षिका को बुलाया और ये कहा कि a progress report is supposed to report certain progress. Where is that progress? You have pointed out deterioration. Where is that progress? The teacher took that personally. She went to the record office, inquired about the history of that student, and she found that up to 3rd or 4th standard, the guy was exceptional.
And then his situation kept on deteriorating. And when he came up to the level of 6th, his performance deteriorated. She also inquired that when he was in 3rd standard, his mother developed cancer. He started losing that touch of mother, and in a year's time the mother passed away, and the moment the mother passed away, the guy kept losing his path, and then that deterioration became eternal deterioration. The teacher could understand the problem of the student. Next day she went to the class, called the guy, gave him a tap on his back, smiled at him, and said, "Beta, you are an exceptional kid. Now I'll take personal care of you. Don't you worry, and the things will improve." Do you know what happened? The guy kept on improving. धीरे धीरे उस टीचर और बच्चे के बीच में सामंजस्य और बढ़ा। एक दिन बच्चा एक बॉटल लेकर के आया और उसने टीचर से कहा कि ये वो इत्र है जो मेरी मां लगाया करती थी। मां की डेथ हो गई, ये इत्र की बोतल यहीं घर पर पड़ी थी। आप जिस तरीके से मेरा ख्याल रख रही हैं, मैं चाहता हूं कि ये इत्र की बोतल आप यूज करें। Mother started using. Next day she came after spreading a bit of that, what you call deo, whatever it is. And when she went close to the student said, "Today you smell like my mother." आप मर्म समझ रहे हैं इसका? आपको क्या लगता है 10, 20, 30 हजार की नौकरी शिक्षक बनाती है? प्रोफेशनल तो बना सकती है, लेकिन आज के बाद में यह सवाल छोड़ करके जाऊंगा आपके मन में, आप शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं या दिल की गहराइयों से शिक्षक है? फर्क महसूस करिएगा। नौकरी रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस। और मैं यह भी सवाल छोड़ के जाऊंगा कि अगर आप में से किसी के मन में इस पेशे के प्रति अथाह सम्मान नहीं है, छोड़ दीजिएगा इस पेशे को। आप समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा करेंगे। पेट भरने के लिए पढ़ाना नहीं है। वो बच्चा कुछ चूड़ियां भी लेके आया जिनके कुछ नगीने निकले हुए थे। मेरी मां इस्तेमाल करती थी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? That guy started improving. And he cleared his 11th or 12th, whatever the standard was at that time. You know, when I was a student, there was no 12th in school. So I don't remember exactly whether that was 11th or 12th, but he passed out. And years later, an old lady got the ticket from that place to a certain place, to and fro. She went. And it was a letter written by that guy, "I'm getting married and you're expected to be there in my marriage." She went to the church, and there a seat was kept where a sticker pasted on them, "My mother." The guy took hold of that lady, brought to the seat and said, "Sit here." समझ रहे हैं कितना सेंसेशनल है ये जो रूपांतरण करने की प्रक्रिया है, ये जो जिंदगियां बदलने की प्रक्रिया है, इतना आसान काम नहीं है। मां बनना पड़ेगा। अपने विद्यार्थियों से एक पिता, एक मां की तरह सम्मान करना पड़ेगा। आप विश्वास करके देखिए, आपके आसपास का सारा स्पंदन बदल जाएगा। I extremely beg your pardon. Teaching has never been a profession.
हैज नेवर बीन अ प्रोफेशन। और जिस दिन से टीचिंग प्रोफेशन बना, उस दिन से टीचर्स और इस टीचिंग के पेशे का जो स्तर गिरा है वो शर्मनाक है। ये तो हमेशा डिवोशन था, समर्पण था, साधना थी, और एक आम आदमी के वश का खेल ही नहीं है कि वो शिक्षक बन जाए। एज आई सेड, 10, 20, 30, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीने की नौकरी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन दिल से टीचर होना बहुत अलग बात है। क्या आप जब अपनी क्लास में जाते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं? उन बदलती हुई जिंदगियों को देखना एक सुकूनदायक क्रिया लगती है? आपको लगता है ओके, एक और क्लास, वही मारा मारी, वही और औपचारिकताएं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, और यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी, कुछ और जिंदगियां बदलने का अवसर मिलेगा। क्या जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट, आपका स्थान उनके मन में क्या है बताती है कि नहीं? लगाव रखते हैं अपने मां बाप से भी ज्यादा, या डर के मुस्कुरा रहे हैं? क्या अपने विद्यार्थियों की जिंदगी को बदलने के लिए हर एक वो पेन लेने को तैयार हैं जो एक मां या पिता लेता है? इनफैक्ट ये आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, इसको जी करके देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। मैं शुरू में ये समझता था ये साले गुरु लोगों ने अपनी पंचायती करवाने के लिए नियम बनाए, ऐसा क्या होता है गुरु? लेकिन जब मैं एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करता हूं, उनकी जिंदगी में होने वाले परिवर्तन को महसूस करता हूं और उनका मेरे प्रति सम्मान देखता हूं, विश्वास करिए हर बढ़ती क्लास के साथ में मुझे इस बात का एहसास होता है कि यार इस समाज ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। क्या इस जिम्मेदारी के साथ में गौरवान्वित महसूस करते हैं? हो सकता है समाज का दूसरा अंग कोई गलती करे, सिपाही साहब कोई गलती करे, 1 साल में साफ हो जाएगी। अकाउंट्स में कोई गड़बड़ हो जाए, चल जाएगा सर, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का मामला इधर से उधर हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पार्ट पर गलती हो गई, पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए इस बात के लिए ये तो स्वीकार ही करना पड़ेगा, या तो बहुत मन से पढ़ाइए या फिर पढ़ाना बंद कर दीजिए, बीच में नहीं। देखिए सर, मैंने रामपुरिया कॉलेज की नौकरी छोड़ी थी 1994 में। आई ज्वाइंड कॉलेज एज अ लेक्चरर इन 1989। मुझे लगा मेरे जैसा आदमी नौकरी नहीं कर सकता, मैंने 1994 में छोड़ दी। मेरे अपने लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने यह कहा था कि गलत फैसला ले रहा है किशोर, नौकरी तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा कर लेंगे। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस एट माई होम। और आज एक दिन में औसतन 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाता हूं मैं, सुबह 6 बजे से रात को 8:30 तक, और हो सकता है थोड़े दिनों बाद अब ये 9:30 तक हो जाए। ऑल्टरनेटिव क्लासेस चलती है, एक समय में 2 क्लासेस, 18, 20, 17, 16, 22 इस तरीके से बैचेस चलते हैं। लेकिन आप जानते हैं मेरा सबसे पहला किसी भी क्लास में क्या स्टेटमेंट होता है? आज सुबह मैंने नई क्लास शुरू की, एंड आई आस्क्ड माय स्टूडेंट्स, बच्चों को नहीं पढ़ाता, 10th से ऊपर का स्टूडेंट चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम क्लास 10th और एनी अदर स्ट्रीम, यू नो, प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड ऑल। पहले दिन मेरा स्टेटमेंट या व्याख्यान उनके साथ में क्या होता है? डू यू नो दैट? ट्यूशन क्यों करना चाहते हो? आपको क्या लगता है ट्यूशन करने से परेशानी खत्म हो जाएगी? क्या आप वास्तव में एक बहुत अच्छी प्लानिंग के जरिए मेरे पास आए हैं, या आजकल ट्यूशन करना हर परेशानी का समाधान माना जाने लगा, बस उस औपचारिकता का निर्वहन करने के लिए आए हैं? क्या आपको लगता है स्कूल और कॉलेज में दिया गया ज्ञान आपके लिए पर्याप्त नहीं था? सी, आई आस्क माई स्टूडेंट्स, 4 सेंटेंस की अंग्रेजी,
8 शब्दों की अंग्रेजी जो मैं आपको अगले 4 महीनों में पढ़ाऊंगा, वो एनसीईआरटी का सिलेबस उठा करके देख लीजिए, 4थी क्लास में खत्म हो जाता है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपको अंग्रेजी में तकलीफ है? आज बैठ बेटा मेरी क्लास में, लेकिन घर पे जाकर के इवैल्यूएशन करके बताना, तू ट्यूशन क्लास किसी बहुत अच्छी योजना के तहत कर रहा है या मां बाप तुझे 2 घंटे तक न पूछे इस जिम्मेदारी से बचने के लिए कर रहा है, या तेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है इसलिए कर रहा है, या तूने किशोर सर का नाम सुन लिया इसलिए कर रहा है? ट्यूशन करने का पर्पस क्लियर है? तुझे क्या लगता है ट्यूशन करने से अंग्रेजी सुधर जाएगी? और अगर नहीं तो फिर बेटा एक बार घर पे बैठ के सोच कि तुझे वास्तव में अंग्रेजी नहीं आती या तू अंग्रेजी के साथ काम ही नहीं करता। Well, very simple sentence, you know, when you say I am teaching, it has got to be practiced 1,000 times and it becomes absolutely fluent where you tend to say I'm teaching। दुनिया का कौन सा टीचर सिखा सकता है बताइए? अगर दुनिया की कोई क्लास यह दावा करती है कि हम अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, साफ और सफेद झूठ है। पर भीड़ देखिए सर, जहां पर भी बोर्ड लगा हुआ है अंग्रेजी बोलना सीखिए, भीड़ देखिए। भले ही सिखाने वाले सर का खुद का तलफ्फुज खराब हो, लेकिन अंग्रेजी तो सिखाते हैं सर। और मैं जानता हूं कि मैं जब इस बात का विरोध करता हूं कि नहीं नहीं ट्यूशन समाधान नहीं है, भेड़ चाल है, तो मुझे लगता है मैं मेरे ही पेट पर लात मार रहा हूं, लेकिन मैं और कुछ कर लूंगा पेट भरने के लिए। ये समाज में गंदगी फैला करके पेट भरना जरूरी है? ट्यूशन समस्या का समाधान नहीं है। इट हैज गॉट टू कम फ्रॉम विद इन। So I believe that if we teachers at school level start working a little harder, I'll also have a little discussion with you. अगर आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, I'll invite those situations as well. But I still believe that if you are teaching in a class, interacting with each and other student personally, looking into their eyes very deep, connecting each and every student with yourself, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो पढ़ाएं वो समझ में नहीं आए? और नहीं आए तो आमने सामने का कम्युनिकेशन है, हमें बच्चों की बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, हम अपनी चलती क्लास में परिवर्तन कर लें। And still, if there is any problem, we can ask. Okay, we had a discussion on that particular topic yesterday. If you're not very certain, come and have a discussion with me. See, I have also come up with a school exclusively for girls. मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है सर, है ना? सिर्फ बच्चियों को पढ़ा रहा हूं मैं। गरीब और कमजोर बच्चियां वो मेरी बेटियों की तरह हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिमिटेड किताबें नहीं पढ़ानी मुझे, मंच से पढ़ाना है। उन्हें मेरे साथ बात करनी है, उन्हें शूटिंग सीखनी है, शूटिंग, उन्हें मार्शल आर्ट सीखना है, उन्हें स्विमिंग सीखनी है, उन्हें बोलना सीखना है, संवाद सीखना है। किताब विताब तो वो जिस दिन बड़ी होंगी अपने आप पढ़ लेंगी। आई एम ट्राइंग टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। हाउ? By interacting with each and every girl that is present there in my school. As a teacher, क्या आपका अपने हर स्टूडेंट के साथ बहुत पर्सनल सा रिलेशन है? आप जानते हैं उसको? कभी बात करके उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश हो पाती है? मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता बहुत होती है, मैं जानता हूं मेरी तरीके से काम करने की स्वायत्तता हर जगह पर नहीं मिलती, मैं जानता हूं मैं एक फकीर किस्म का आदमी, अपनी तरीके से काम करने वाला आदमी हूं। आप एक सिस्टम में बंद करके काम कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम में भी whatever little we can do to the betterment of our students, have you been ever able to establish a bit of rapport with a student that you are teaching? थोड़ा सा समय दिन में 2-4 स्टूडेंट्स रोज, सारे बच्चों को नहीं। जब हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स की, जैसे मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके समझ में आ रहा है
सर हम टीचर्स बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो हो ही जाते हैं, तो मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके समझ में आ रहा है आप में से कौन मुझे कितना रिसीव कर रहा है, किसको मैं जबरदस्ती थोप रहा हूं अपनी बात। हैपेंस। आपकी क्लास में भी आपको समझ में आता होगा कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो अब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। 5 मिनट बिताइए ना उसके साथ, उसकी पीठ पे हाथ रखिए, उसे उसका पिता या माता होने का एहसास दिलवाइए और उसे सिद्ध करके बताइए कि दुनिया में उसके माँ बाप के बाद आपसे बड़ा उसका शुभचिंतक कोई नहीं है। आप तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं साहब, 10वीं 12वीं के बच्चों को, इससे बड़ी क्लास के बच्चे तो है ही नहीं। मेरी क्लासेस में हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, रहने दो मैम, रहने दो। मेरी क्लास में तो हिस्ट्री शीटर्स भी आते हैं सर, लेकिन मैं जिस तरीके की रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट्स के साथ में एंजॉय करता हूं और जिस तरीके का रिस्पेक्ट मैं उनसे कमांड करता हूं, उसका एकमात्र कारण है कि मैं जिस किसी से भी मिला मैंने आज तक कभी उस व्यक्ति को रिजेक्शन नहीं दिया। मुझे पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो ठीक, नेक्स्ट टाइम मुझे उससे मिलना है या नहीं मिलना है, उसे कितनी लिबर्टी देनी है या कितनी नहीं देनी है, दैट इज इंटायरली अ सेकेंडरी इशू। लेकिन पहली मुलाकात में वो जो भी क्रेडिट लेकर के आया हो, मेरे से मिलने के बाद में उसने रिजेक्टेड कभी महसूस नहीं किया। स्टारडम अलग चीज होती है फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग तो टीचर्स हैं, पता नहीं कितने पिछले जन्मों के पुण्यों का संचय हुआ होगा तो हम शिक्षक बने। काम तो दूसरा भी कर सकते थे, पेट तो दुनिया ही भर रही है। प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू, स्टिल वी कैन डू, but now this is the time or this is the profession that is keeping us absolutely at the top. मुझे तो इस बात का बड़ा गर्व होता है कि मैं शिक्षक हूं और मैं कभी किसी को इसे लाइटली लेने भी नहीं देता। गर्व इसलिए कि समाज का सबसे इंपॉर्टेंट काम परमात्मा ने मुझे सौंप करके भेजा है और समाज ने मुझ पर विश्वास किया है। क्या ये गर्व आपको कहीं पर अनुभूत होता है? नहीं होता तो करके देखिए ना सर। आपसे भाग्यशाली इस धरती पर और कितने लोग हैं, मुझे गिन के बताइए। और कितने लोग हैं जिनके दिन भर पांव के दुनिया हाथ लगाती है। लोकप्रियता के लिए दिन भर अखबार में विज्ञापन छपवाने पड़ते हैं, राम राम सा समझो थे, राइट ना। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, अपने प्रोफेशन के लिए 100% डिवोटेड होकर के बच्चे के साथ में जुड़ना है और जिंदगी भर। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम गंगा शहर फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन एंड ही सेड, प्रणाम सर, मेरा बेटा बाहर से आया है सर महीने भर के लिए, मैं चाहता हूं आपके सानिध्य में रहे सर, आप मेरे लिए बड़े सम्माननीय हैं सर। मैंने कहा शुक्रिया सर। दुनिया में सारे रिश्ते भूतपूर्व हो जाते हैं, गुरु कभी भूतपूर्व नहीं होता। आप कभी सोच के देखिए आप क्या हैं। और उसके बाद में जब आप अपनी क्लास में जाएंगे, आप अपनी बड़ी स्ट्रांग प्रिपरेशन करके, अपने आप को एडिफाई करके और अपने आप को दूसरों से बेहतर मान करके क्लास में जाएंगे। आप देखिए क्या होता है। एट माई प्लेस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, राइट। कोई भाषण नहीं दे रहा मैं, पर मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि मैं शिक्षक हूं और मैं कभी किसी को इस बात को लाइटली लेने नहीं देता। चाहे कोई मेरे से टेलीफोन पर बात करे, व्यावसायिक होने की इजाजत नहीं देता। हालांकि मैं बिकता हूं सुबह से शाम तक, लेकिन फिर भी किसी को इजाजत नहीं मेरे साथ व्यावसायिक भाषा में बात करने की। कोई भी हो बोले, घर पे मिलने में पेरेंट्स से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता। नौकर थोड़ी हूं सर उनका, शिक्षक हूं मैं। क्या मम्मी पापा रोज फोन करके पूछ रहे हैं? उनको पता नहीं उनका बच्चा कैसा है। मेरे घर पर पेरेंट्स का इंक्वायरी के लिए आना या रोज रोज फोन करके पूछना नॉट अलाउड। जिस मम्मी पापा को देखना हो कि मेरा बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, वो मेरी क्लास में बैठे 2 दिन। ऐसा किस लिए फ्रेंड्स?
मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि मैं जब क्लास में होता हूं तो इट इज ऑलवेज मोर देन 100%। उसके बाद अगर बच्चा नहीं सुधर रहा या नहीं सीख रहा, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। एक शिक्षक होना बेहद गर्व और सम्मान की बात है। मैं किसी एक महापुरुष को सुन रहा था, मैं, और वो ये कह रहे थे कि पारस जो होता है किसी लोहे से अगर छुआ दो तो उसको सोने में तब्दील कर देता है। बड़ी विशेषता है कि नहीं? बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन गुरु की विशेषता इससे भी बड़ी होती है। वो पारस उस लोहे के टुकड़े को सोना तो बना सकता है, लेकिन खुद को पारस पत्थर के रूप में डेवलप होने नहीं देता उस सोने को। समझ रहे हैं आप? गुरु ही वो व्यक्ति है जो किसी शिष्य को छू करके गुरु बना देता है। इतने महान प्रोफेशन में होना मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है। और सिर्फ मैं कहता नहीं, मेरी जिंदगी के हर व्यवहार में यह बात 100% रिफ्लेक्ट होती है। और शायद मैं इतने गुरु के साथ इसलिए जी पाता हूं कि पिछले 28 सालों में मेरी एक भी क्लास इसी एनर्जी लेवल के साथ हमेशा ली गई है, और एक भी क्लास ऐसी नहीं रही जिसमें एनर्जी लेवल इससे 5% भी कम हो। नॉट इवन अ सिंगल क्लास। आई नेवर मिस माई क्लास। कोई मर गया या मैं बेहद अस्वस्थ हो गया, virtually it was impossible for me to get to my class, then only I had a holiday or a vacation. Otherwise I never miss my class. मैंने सिपानी जी से कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिएगा एलईडी एलसीडी, एक शांत क्लास चाहिएगी जिसमें पंखे मोबाइल कूलर कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं सर। मेरे 3 बच्चे हैं और बड़े खूबसूरत हैं। मेरी क्लास के दौरान अगर मेरी औलाद भी बीच में आती है तो मुझे पसंद नहीं है। इतने समर्पण के साथ में पिछले 28 सालों से जो मैं काम कर रहा हूं, इसने मुझे मेरी शर्तों पर काम करने का अधिकार दिया। मैंने हर क्लास में अपने आप को सिद्ध किया है। मैं सिर्फ पेशे से शिक्षक नहीं हूं सर, व्यवहार से शिक्षक हूं और हृदय की गहराइयों से शिक्षक हूं। और एक एक क्षण मैं इसके सम्मान में जीता हूं। और न सिर्फ मैं या कोई मुझे लाइटली ले ले, मेरी इस बिरादरी को भी मैं कभी लाइटली नहीं लेने देता। Wherever I am, a teacher has got to be respected. And I still believe कि जिन लोगों के कमिटमेंट का स्तर इतना बढ़िया नहीं है, वो खुद भी बेइज्जत होते हैं एक शिक्षक के रूप में। माफ करें, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन रोज डांटेगा, और क्यों ना डांटे साहब। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्सपेक्ट करेगा, प्रेशराइज करेगा, हम वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हमारा ईगो हर्ट होगा। छोड़ दीजिए सर स्थान। समाज में दूसरे बहुत सारे योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं, उन्हें आने दीजिए। आपका ईगो हर्ट होगा, आपको तकलीफ होगी। वो बच्चे जो आपके भरोसे यहां पर आए हैं, उनको उनका ड्यू नहीं मिलेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी परमात्मा माफ नहीं करेगा अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया तो। परमात्मा का स्वरूप है आप। मैं यही चाहता हूं कि अगर हम शिक्षक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ईमानदारी से निभाना शुरू कर दें, शायद पुलिस स्टेशन से बंद हो जाए सर। आज पुलिस स्टेशन इसलिए आबाद हैं कि हम शिक्षकों ने और पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ठीक से निर्वहन करना बंद कर दिया। वरना समाज में पुलिस और प्रशासन की जरूरत पड़े सर। मैं सड़क पर बदतमीजी कर लूं या मेरे बच्चे कर लें,
लेकिन अगर शिक्षकों का और माँ बाप का नियंत्रण नहीं है तो मैं भी करूंगा और मेरे बच्चे भी करेंगे। इसलिए दुनिया के सबसे सम्मानित पेशे में हैं आप। पेशा शब्द भी अब बहुत उचित मुझे नहीं लगता। दुनिया के सबसे सम्मानित कृत्य को कर रहे हैं आप चाहें तो आपका कद उस मुकाम तक बढ़ सकता है जहां पर लोग जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही शर्त है, शिक्षक बनने से पहले मां बनना पड़ेगा, शिक्षक बनने से पहले पिता बनना पड़ेगा। क्लास में जिस वक्त जाएं तो आपके विद्यार्थी आपकी औलाद से भी महत्वपूर्ण हो। आप अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी पूरे मन से उठाने के लिए तैयार हो। आप देखिए तो सही सर, आपसे बात करने से पहले भी लोग 4 बार सोचेंगे। कहना, टोकना, निर्देशन, डायरेक्शन, these are not the words that are meant for the teachers. A teacher has got to be respected come what may, provided he or she is a teacher right from the bottom of his or her heart. And once it becomes, there is nothing impossible that we cannot achieve. सारा का सारा परिवेश बदल जाता है सब। कुछ किसी अच्छी जगह पर जाकर के देखिए। अभी कुछ दिनों पहले मुझे जाना था किसी काम से सब परिवार जोधपुर। घर से निकलते ही कोई फोन आया और जोधपुर जिस पर्पज से जाना था वो कैंसिल हो गया। बच्चे साथ थे, मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। हम शिक्षकों को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत कम समय मिलता है, जब भी मिले तो बिताएं। अप टू नागौर श्री बालाजी से पहले अड़गड़ानंद जी महाराज का आश्रम है। कभी अवसर मिले तो जाइएगा। आप कौन से धर्म को मानते हैं? देखिए सर, मैं जातिवादी में ज्यादा विश्वास नहीं करता। धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन सब से मैं बहुत आगे निकला हुआ इंसान हूं, है ना। कभी अवसर मिले तो जाइएगा, या और किसी आश्रम में चले जाइएगा। अड़गड़ानंद जी का भी जरूरी नहीं। मेरे बच्चे साथ थे और आश्रम में जाते वक्त मैंने कहा कि बेटा इसको ठीक से ऑब्जर्व करना, वापस आते वक्त मैं सवाल पूछूंगा। My kids had a stroll around. They had something to eat that was absolutely delicious. They interacted with the Maharaj ji, who was the Mahant over there. We spent certain period of time, and while coming back, the moment my kids got into my car, I asked, "क्या सीखा बताओ? क्या सीखा?" व्यवस्था देखी यहाँ की, साफ सफाई देखी, अनुशासन देखा, और जो चेले भाग भाग करके काम कर रहे थे उनकी बॉडी देखी तूने? तू जिम जाता है ना? मेरा बेटा जिम जाता है, अभी शुरू किया, नया नया शौक है। मैंने कहा तू जिम जाता है ना, इनके जैसी बॉडी बना करके दिखा देना। और तूने देखा जब इनके गुरुजी खाना खा रहे थे तो ये कितने समर्पण के साथ में खड़े थे, और तुझे इनकी क्वालिफिकेशन पता है? They are not the ordinary people coming from the countryside of Bikaner. They are the people coming from absolutely prestigious institutions of India. See the commitment, see the devotion. आपके विद्यालय का माहौल कैसा है? क्या यहां जब कोई आता है तो उसको सकारात्मक स्पंदन मिलते हैं? क्या आप जो यहां सरस्वती आराधना कर रहे हैं उससे यहां का स्पंदन बदला और आक्रोश झलकता है? वो सकारात्मक स्पंदन इस बात का परिचायक है that you have been practicing pretty hard, and if those positive vibrations are missing, it means it's a commercial business house where money is being minted and the education seems to have gone a begging. इतने सम्मानित पेशे में होने के बाद आंतरिक रूप से प्रसन्नता कैसी है? Are you really satisfied inside? Happy with your employers? Happy with your profession? Happy with your students? When you get back to your bed, how do you feel?
ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें जिन पर काम करके देखिए। एंड व्हाट यू नीड टू डू, अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मेरे जैसा आदमी जो थोड़े से नियम कानून कायदे कम मानता है सर, है ना, बीएड मैंने भी कर रखा है, पर मैं वो बोर्ड मेंटेन करना और अगर करना मगर करना इन सब से वाकिफ नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं, क्लास में जाएं और हर विद्यार्थी के दिल में उतर जाएं। क्या क्वालिफिकेशन है, बोर्ड मेंटेन किया कि नहीं किया, ड्रेस कोड आप सबका है, ये सब चीजें कहीं बस अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन आपको दिल से शिक्षक बनाने के लिए एक ही काम जरूरी है, डू यू लव योर प्रोफेशन, डू यू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, याद रखना, लेकिन इंसान कमाना, पुण्य कमाना, संतुष्टि कमाना एक स्टेज के बाद बड़ा मटेरियल हो जाता है। When money becomes absolutely useless and the kind of respect that you command in the society becomes the most important thing in a life, क्या इस प्रोफेशन में आकर के उतना सुकून आपको महसूस होता है? अगर हां तो ये जीवन भी सफल और अगला जन्म भी सफल, और अगर नहीं तो अबार भी खून बढ़े, बड़े बड़े लो और रोक नहीं सकते, बिकॉज दिस इज प्योर नेचर माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग। इसलिए इस प्रोफेशन में, और मैं जब आया था तो मैं सीमा मैम से कह रहा था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस स्कूल के साथ में इसके उद्घाटन के दिन से जुड़े हैं। मैं जुड़ा हूं, इसका उद्घाटन सत्र, उसका संचालन मैंने किया था। अठी प्रोग्राम हो वैसे मन से अठला गड़ो, इज इट? दैट्स ग्रेट, या ट्रू, गुड, है ना। उस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा था, और आज जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि जैन पब्लिक स्कूल में कल्ला जी भी एक करूं दूसर फोन कर दे, नहीं, क्योंकि उस वक्त कल्ला जी भी मंच पर थे, कांग्रेस का राज था मेरे ख्याल से, है नहीं, वल्लभ जी और कांग्रेस ही है। कल्ला जी भी एक एडमिशन से दूसरे एडमिशन का फोन कर देना तो एडमिशन होता नहीं। मैं कभी सिफारिश करी कौन भाई साहब, मैं करूं तो करना पड़े लो। गर्व होता है साहब मुझे, बीकानेर का नंबर 1 स्कूल है जैन पब्लिक स्कूल। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को यहां पर चाहता है, आपकी वजह से। इतना सम्मान है आपका, इस बड़े पेड़ से अलग होने पर कोई वजूद नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज हर कोई जैन पब्लिक स्कूल को मॉडल मान करके अपने स्कूल को डेवलप कर रहा है। आज हर कोई जैन पब्लिक स्कूल की सफलता की चर्चाएं कर रहा है। मुझे मैडम ने बताया शायद 2-2.5 हजार बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं है साहब। ये आपकी मेहनत है, आपकी काबिलियत है, इस पर फक्र करना सीखिए। ये नींव आपकी है। आप इतने सम्मानित इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हैं, तब तो फिर आपकी कंधों की जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा हो जाती है। तकलीफ उठानी पड़ेगी साहब, मुफ्त में नहीं मिलते। सफलता, समृद्धि और प्रसिद्धि बहुत महंगे काम है साहब, और एक आदमी के वश का नहीं। इट्स अ ग्रेट टीम वर्क। सो इफ यू कैन जेल योरसेल्फ, और इस तरीके का एम्बियंस बनाइए कि ये जो जैन पब्लिक स्कूल का नाम है, गौर करिएगा साहब, बिना पात्रता के अगर समृद्धि और प्रसिद्धि मिल गई तो संभलेगी नहीं। और अगर आप इस प्रसिद्धि और समृद्धि को चिर बनाना चाहते हैं, if you wish to have all these things, this prosperity and success to be absolutely eternal, perpetual, prepare a nice team. The kind of hard work that you people have been putting now, keep doing that. Relentlessly काम करना पड़ेगा. It's not that you work for a day or two, for a year or two, and then you start taking complete rest. I've really worked pretty hard. I've proved myself. Now I've got a big name, and my name would just bring everything for me.
it'll start deteriorating. We are in such a profession that we need to prove ourselves every day in every class. हर क्लास नहीं है सर हमारे लिए, हर दिन नया है, इसलिए बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है टीचिंग। और आप सबकी इस टीम वर्क ने बीकानेर में कमाल करके दिखा दिया। आज आपका नाम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा के साथ आपका नाम लिया जाता है। और ये जब सुनने को मिलता है कि XYZ भी अगर सिफारिश का फोन करे तो एक बार जैन पब्लिक वाले कर देते हैं, दोबारा उसको भी मना कर देते हैं, ये बड़ी बात है सर। ऐसे लोगों के बीच में होना मेरे लिए भी गर्व की बात है। Now what you need to do, you need to maintain it. और उसके लिए खूब त्याग करना पड़ेगा सर, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर साल नए बच्चे मिलेंगे। पिछले साल आपने मेहनत की, वो तो आगे बढ़ गए। Now you have got new lot. You will have to prove yourself again. You will have to pull your socks up every time. And this is a kind of endless process. So the kind of talent that you have got, the kind of grit that you have got, if you can add few more qualities to it, कम से कम ये सुनिश्चित करिए कि आपके रिटायरमेंट तक ये स्कूल बीकानेर का नंबर 1 स्कूल बने। जैसे मुझे इस बात का एक इल्म है कि मैंने जो मेहाई खोली, आज तो 15 दिन पुरानी है सर, है ना, लेकिन 2, 4, 5 साल में उसको वहां ले आऊंगा कि कोई पिता अपनी पुत्री का एडमिशन अगर मेहाई में करवाएगा तो उसे बड़ा गर्व होगा। शौक है मेरा, नशा है, ये नशा आपको भी हो। आप तो कोएड में हैं, आपकी और मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स अलग है, इसलिए हम लोग कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। और मैं कॉम्पिटिटर तो किसी को मानता ही नहीं सर, ये तो इंडिविजुअलिटी है, इसमें क्या कंपटीशन है। आज हम दून स्कूल का नाम लेते हैं, आज हम बिशप्स कॉटन का नाम लेते हैं, जैन पब्लिक स्कूल का क्यों नहीं? आप कहीं पर जाकर के कहते हैं कि मैं जैन पब्लिक स्कूल का स्टाफ हूं, कैसा सम्मान मिलता है समाज में? ये आप सब लोगों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है, और इसके लिए अगर कुछ कीमत चुकानी पड़े तो चुकाइएगा। आप कहीं पर जाते हैं, कितने बच्चे आपके पांव के हाथ लगाते हैं, और उन बच्चों के पेरेंट्स आपके लिए किस तरीके की नजरों से आपका स्वागत और सम्मान करते हैं। कम बड़ी बात है, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सम्मान के लिए, मिलता नहीं। आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो न सिर्फ टीचिंग के शानदार प्रोफेशन में, दूसरी किसी स्कूल में भी तो टीचर हो सकते थे, जैन पब्लिक स्कूल ही क्यों? देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्कूल्स, though there are certain very big schools and successful schools, on the other hand there are certain schools that are pretty mediocre. उनके टीचर्स को क्या वो सम्मान हासिल है जो आपको है? ये आप सबके त्याग का परिणाम है, ये आपके मैनेजमेंट के कमिटमेंट का परिणाम है, ये वो अनुशासन है जिसकी वजह से आज आप यहां तक पहुंचे हो। अब अगर इसे आप पेरेनियल बनाना चाहते हैं, चिर बनाना चाहते हैं, एक कल्चर बनाइए, कोई नया टीचर भी आए तो आपको देख करके उसी सांचे में ढल जाए। That is how that culture becomes. Why should the management need to train them? I mean, if they join you, just see you for a few days and they learn what you're doing, they'll also start doing the same thing. So in this way, it's a matter of हम जैसे लोग सर जो इस जैन पब्लिक स्कूल के उद्घाटन के बाद आज दूसरी बार यहां आया है, जैन पब्लिक स्कूल का नाम आता है तो मुझे लगता है मेरा स्कूल है, मुझे लगता है मेरा सम्मान हो रहा है। आप तो यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कितना सम्मान होता होगा, कितना गर्व होता होगा। और अगर वो गर्व और सम्मान है फिर कुछ कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी सर, त्याग करना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा, कहीं मन रखना, मन मारना पड़ेगा। कभी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहेगा, आपकी चॉइस नहीं है, स्टिल यू विल हैव टू डू दैट। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट द laurels that you all are trying to get here. So मैं यहां वास्तव में तो सौभाग्यशाली बनकर के आया था। मुझे तो इस बात का फक्र था कि मुझे जैन पब्लिक स्कूल के मेरे परिवार के लोगों से मिलना पड़ेगा, और ये मेरे लिए फक्र की बात है। और जब मुझे ये पता चला कि ये सभी वो टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से ये स्कूल इस मुकाम तक आया, मुझे लगा वाओ,
ऐसे भी कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो जैन पब्लिक स्कूल के इतने सारे टीचर से एक साथ मिलते हैं। बताइए, आपसे मिलने के लिए पेरेंट्स को लाइन में लगना पड़ता है साहब, और मैं एक साथ आप सबसे मिल पा रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे, मैं अभी आपके साथ संवाद करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत बड़ी बात है सर। जिंदगी में इतना मान सम्मान दुनिया को मिलता नहीं। ये आप सौभाग्य के साथ में इसके साथ में हैं। कोशिश करिए आप बहुत ऊंचे मानदंड स्थापित करें। कोशिश करें कि जो बेंचमार्क आप सेट करें आगे आने वाले लोगों के लिए ये होना चाहिए, यार ये मैं अगर हासिल कर लूं, then I've been able to achieve something। ये आपके क्रेडेंशियल्स इतने ताकतवर होने चाहिए। In this way, I always believe that whenever I get an opportunity to interact with my teachers, or with my fraternity of teachers rather, it is all in family, and together we all can make a huge difference, and that difference the society would always love and remember for, and your respect in the society would be absolutely perennial forever। बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके, गौरवान्वित हूं मैं, मैम आपने मुझे अवसर दिया, सेमानी साहब ने मुझे अवसर दिया। मेरे ख्याल से आप में से अगर कोई मेरे से बात करना चाहे, हालांकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहें, संवाद करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनीथिंग? जी समझ गया मैं। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही विद्यार्थी है, वही शिक्षक है और वही शिक्षिकाएं हैं। मुझे वो थोड़ी सी एक, देखिए साहब अंग्रेजी पढ़ाता हूं पर मैं हिंदी, उर्दू और संस्कृत तो इतनी नहीं, लेकिन मारवाड़ी के साथ में बहुत जुड़ा रहता हूं। आप सबने सुना होगा, तुलसी नर का क्या पड़ा, समय बड़ा बलवान। अर्जुन को हिजड़ों ने लूट लिया साहब। जब श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया था, अर्जुन उन सभी गोपियों को और उन सभी कृष्ण की पत्नियों को और द्वारका की जो जिंदा बच गई थी उन महिलाओं को लेकर के जब वापस आ रहे थे, हिजड़ों ने अर्जुन को लूट लिया साहब। वही गांडीव था उसके पास। अर्जुन का तेज खत्म हो गया साहब। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में सम्मान की कमी हो जाए, आपके तेज में कहीं पर कमी जुड़िए उनके साथ। विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करे, कोई मेंटेलिटी नहीं बदली सर। हम शिक्षक बदल गए, हम नोट छापने की मशीन बन गए, हम अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग गए। हमें जितनी सैलरी मिलती है उतना काम करते हैं, पेन नहीं लेते। इन सब चीजों को किनारे रख करके विशुद्ध शिक्षक बन करके देखिए, आप तो सम्मान की बात करते हैं साहब। आपके एक इशारे पर जान दे देंगे विद्यार्थी। ये तो बड़ी बढ़िया और महंगी स्कूल है साहब। कितनी फीस लेते हो मैम? 30-40 हजार रुपए लेते हो ना? साल का कितना ले हो? 24-25 हजार। झोपड़पट्टियों में गरीब अनपढ़ माँ बाप के बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं जब उनको दिल से पढ़ाती हैं तो वो अनपढ़ और अशिक्षित बच्चे उनके प्रति जो सम्मान रखते हैं वो देखिए। माफ करिए, मैं इस बात से बिल्कुल तवक्को नहीं रखता। ना तो शिक्षक बदले हैं, ना शिक्षार्थी बदले हैं। हम शिक्षकों में से आज कुछ जो सफल शिक्षक हैं, अब हम शिक्षक नहीं है सर, हम नोट छापने की मशीन है, हम दुकानदार हैं। विद्यार्थियों से उतना हमारा तादात्म्य नहीं बैठ पा रहा।
हम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों से कड़वा बोलने से झिझकते नहीं, फीस नहीं है तो क्लास में नहीं बैठने देते। आप भी तो विद्यार्थियों के साथ ग्राहकों जैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अगर आपको दुकानदार समझ करके धुतकारे हैं, इसमें क्या अतिशयोक्ति है? दिल की गहराई से शिक्षक बन के देखिए, जिंदगी के किसी भी स्तर पर बीकानेर का कोई ऐसा बड़ा घराना नहीं है सर जिसका बच्चा मैंने नहीं पढ़ाया। नॉट इवन अ सिंगल फैमिली। गंगा शहर, बीना शहर, इधर इनसाइड सादुलगंज, व्यास कॉलोनी, मेरे सामने कोई फोन रिसीव कर ले, अगर मैं खड़ा हूं और उस घराने का बच्चा खड़ा है, फोन आ जाए, वो फोन निकाल करके पीछे कर लेता है। आज तक मैंने एक भी बच्चे को नहीं डांटा, मेरी क्लास में एक भी बच्चे को खड़ा करके मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। लेकिन मैं जब मिलता हूं तो इतने अपनत्व, इतने प्यार से मिलता हूं कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मेरे अंदर समा लेता हूं मैं। माफ करिए सर, सम्मान शिक्षक शिक्षिकाओं का कम हमारे अंदर दोष है सर, कुछ भी नहीं बदला। और समर्पण पैदा करिए अपने पेशे में। जी, मैं आपको एक मिनट इससे पहले से जानता हूं, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। किरी बेटी है, तुम आप बता। I have also taught you, right? ना? Okay. I was trying to recall because, अच्छा बैठिए, ये समस्या मेरी क्लास में आती थी क्या? For whom? Whatever they expect, they get. Once they speak, they get that. But we have done hard work for that. That's why we are realizing the importance of all these things. But they don't realize. They know if we study well, it's okay. Otherwise, there is a business of my father. Enjoy now. But they don't want to do the hard work. Okay, बैठिए। That is the main one. ये भी हो सकता है कि आपका विद्यार्थी जैसा आप चाहें वैसा न पढ़े, आपसे मधुर संबंध होने से कौन रोक रहा है? That is results are not in your hands. आप में से अंग्रेजी पढ़ाने वाले कौन हैं? जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं कितने लोग हैं? और हाथ खड़ा करें सर। इंग्लिश मीडियम नहीं, those who are teaching English as a subject. Good. ए मारे ज्यादा नेड़ा है बोलो, मारे परिवार रहा है, वो मारो दादरो परिवार है, समझो थे? अंडरस्टैंड शब्द के साथ आईएनजी लगा करके कंटिन्यूअस टेंस बनाना मना है। इफ एवर यू से आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, दैट इज रॉन्ग। व्हाई? Understand is a spontaneous activity. It can never be a deliberate activity, and the continuous tense is meant for the deliberate activities, right? Understanding is an activity which is an uncontrolled activity. So what they understand, what they don't, it is neither in their hands, not in our hands. और एक बात, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सिलेबस तक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी उनके व्यक्तित्व की सर्वांगीणता है। पढ़ाई तो उतनी ही करेंगे जितनी जरूरत है, लेकिन पढ़ाई के अलावा आप उन्हें 50 चीजें सिखा सकती हैं, उसमें से वो कितनी सीखेंगे कितनी नहीं। As I said, understanding is spontaneous activity, and you can never say I'm understanding. So it will happen automatically, and whether it will happen or not, nobody knows. At least the atmosphere of the class and the आपका विद्यार्थी दूर से दिखना चाहिए सर, आपको फक्र होना चाहिए। ये स्कूल जो सेठ लोग बनवा रहे हैं, आते होंगे वैसे भी, यहाँ कोई अपना घर बनाता है उसको बड़ा फक्र होता होगा, नहीं? अपने सभी परिचितों को ले जाता है, देख मैंने मकान बनवाया, ये मार्बल देख इटालियन है, रसोई देख थारे भाभी री पसंद रही है, टूटी यहाँ हाथ करते ही पानी चाले में चलानी खुल पड़े। मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एक मकान बनाना, राइट ना? वो कभी उसको इस एंगल से देखता है, कभी उस एंगल से देखता है, लोगों को ले जा करके अपने मकान का क्रिएशन दिखाता है कि नहीं? आपका क्रिएशन पता है? वो बच्चा आपका क्रिएशन है।
हजारों की भीड़ में आपका विद्यार्थी आपके लिए फक्र का विषय होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारे प्रयासों में कहीं ईमानदारी का अभाव रहा है। मैं मानता हूं कि स्कूल में कुछ लिमिटेशंस हैं। 30-40 मिनट का पीरियड होता है, आपको 50 तरीके की औपचारिकताएं करनी होती है, अटेंडेंस, ये वो, कॉपी। आपको बच्चों के साथ शायद उतना समय नहीं मिलता होगा, आई डू एग्री। लेकिन साहब, किसी की जिंदगी बदलने के लिए 5-10 मिनट पर्याप्त है ना? क्या आप किसी विद्यार्थी के साथ 5-10 मिनट संवाद करके उसे अपनाते हैं? देखिए तो सही क्या परिवर्तन होता है। आपको पता है, मेरे घर पर इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद कोई नौकरी नहीं करता, और मैंने मेरे घर का एक भी काम आज तक नहीं किया। कभी सब्जी नहीं लाया, गेहूं कौन से सीजन में आते हैं मुझे नहीं पता, चीनी के क्या भाव है कुछ भी नहीं पता। सिर्फ क्लास लेता हूं, और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे स्टूडेंट्स अपने आप ही उठाते हैं। गुरु क्या होता है ये बताऊं? एक बीकानेर के नामचीन हस्ती रहे, डूंगर कॉलेज से रिटायर हुए मेघराज जी रांकावत साहब, जसूसर गेट के अंदर स्वामियों के मोहल्ले में रहते हैं, जानते हैं? That is Guru. That is Guru. Yes, passed away. ऐसा कोई जिला या तहसील नहीं जहां गुरुजी चले जाएं और वहां का न्यायिक अधिकारी उनके पांव में न पड़ जाए। इतने जजेस बनाए उन्होंने। शालीनता देखिए, मृदुलता देखिए, एक्सट्रीमली फ्रेंडली। बच्चों को पढ़ाते थे, पैसे के हाथ नहीं लगाते थे। कॉलेज में भी साइन करते थे, सैलरी बच्चे ही ला के देते थे घर पे, पैसे के हाथ नहीं लगाते थे। आज हम लोग तो पैसों के पीछे पागल हो गए ना। गुरुजी गिफ्ट भी नहीं लेते थे बच्चों से। जिस सब्जेक्ट में 60% से ऊपर आता था उसमें आप गुरुजी को एक चॉकलेट दे सकते थे और गुरुजी वो चॉकलेट आगे दे देते थे, बस। क्या सम्मान उनका है, बहुत बड़ी चीज है सर शिक्षक होना। हजारों लाखों लोगों में से आपका चयन किया गया है, इसके महत्व को समझिए और देखिए क्या इथरल जॉय होता है। बाकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। And the kind of satisfaction that you start collecting once you start believing the importance of this noble profession. इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन आपकी महानता और बड़प्पन के आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और पेन लेना शुरू करिए और देखिए क्या बच्चों की जिंदगियां बदलती हैं। और कुछ इसीलिए आप बीकानेर में नंबर 1 हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। इसलिए आप नंबर 1 हैं। Taking care of each and every aspect of your student's personality. Everybody might not be a very fluent speaker in English, might be pretty good at English, at maths, might not be good at academics. Ask him to perform on the stage, perhaps he'll burn the stage. यही तो विद्यार्थी के अंदर छिपी हुई जो संभावनाएं हैं उनको पहचाने और उनका मैनिफेस्टेशन करने में उसकी मदद करें। यू आर अ जेन्युइन ट्रू टीचर इन दैट केस। और कुछ नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।